Hello everybody, I welcome you all to the About Notes. This is our first lecture of our learning series which we have started. And as you know, the first subject we are taking is 7th standard social science. And in the social science, we are starting with the history. As you know, our history is divided into 3 parts. The 3 parts are, the first part is the ancient history. Then medieval history comes, and after medieval history the modern history comes. So in the 6th standard or before, you have studied the ancient history, and in your 7th standard you are studying the medieval history. The medieval history starts from to 700 to 1750. So this period we are studying in this 7th standard, and afterwards you will be studying the modern history. So this is the introduction about the history which we are going to study. So let's start with our chapter. Look at the name of the chapter. Okay, what is the name of the chapter given here? Your first chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years. Okay, what do you understand by this? Tracing. Tracing means knowing, overlooking, outlooking. Okay, anything. So what you are overlooking, what you are outlining, you are outlining the changes. Okay, you are outlining the changes through 1,000 years. Over the 1,000 years of period, you are outlining the changes in briefly manner, how it is happened. So in this chapter, in this our first chapter, we are outlining the changes happened through 1,000 years. So this is the meaning of your name of the chapter. Okay, so next, moving to the next slide. So as you know, you might have watched our introduction to the learning series video. There we have mentioned that we will be giving the pre-lecture assignment to connect your knowledge with the current topics. So in this way, this is our first pre-lecture assignment. Okay, so it is very important for you to complete this assignment. Until and unless you won't get the topic as much as possible, means the understanding of topic will be much better if you complete this assignment. So I encourage you all to complete this pre-lecture assignment. I will be making a different video to show you how these pre-lecture assignments are to be done. Okay, so there's a video. You can find its video on your screen. You can click on it, or the link is given into the video description, from where you can go to the pre-lecture assignment video and know how to do it. Now, before starting this topic, just look at the heading of this slide. So the heading is cartography. What is cartography? Do you know what is cartography? If you're not, then cartography is the process of making maps. Okay, the process of making maps is known as a cartography, and a person who makes a map known as a cartographer. So below you can see in a red color sentence there is a cartographer. The definition of a cartographer is given. So now look at the both of the images. Both of the images are of map. Both are the map of India, but both maps are made during different centuries. The map 1 made during 12th of century, and map 2 made during the early 18th of century. Okay. Now, in that map, see, in the map 1, you see a map of India is not quite similar to the Indian map we see today. Okay, now today's Indian map is very much different than this map, but due to the limitation of that time, the cartographer made such map. So if you able to recognize our India, let me help you. Like here, the south of India, our India is like this. The south of India is like this, and here's north is here, and south is upward. So this is south, and this is Sri Lanka. Okay, this is the Sri Lanka. So this is the Sri Lanka, this is our south portion of our India. So, and now I will conclude it later. Now look at the map 2. In the map 2, you can see this map is quite similar to our present day map. So this map is made to this advanced level because of the technology, and the time goes by the 12th of century, because this is made in the early 18th of century. So you see
the both maps are different, but both are of India. So when the conclusion which you have to made here is that whenever you read history, the history is different for different times. Like if you read the history in 12th of century, the India is defined by this map. But if you read the history in early 18th of century, India is defined by this map. So whenever you read the history, you have to consider the terms used of that time. You cannot use this map, the early 18th century map used to study the 12th of century. You have to use the 12th of century map to study the 12th of century history. So this is the conclusion we can make here. Now moving to the next slide. In the next slide, some more examples are given to make you understand about the changes that happen through years. Okay, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए, तो उसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आप अभी इंडिया के कोई पार्ट में रहते हो, वहाँ पे जो हिंदी बोली जाती है, और वो उस पार्ट से आप अगर किसी और पार्ट में या किसी और राज्य में चले जाए, वहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी में आप देखते हो कि डिफरेंस आता है, लैंग्वेज में डिफरेंस होता है दोनों के। जो हिंदी मध्य प्रदेश में बोली जाती है वही हिंदी महाराष्ट्र में बोली जाती है, बट दोनों में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कुछ वर्ड के मीनिंग भी चेंज होते हैं, ये रीजन टू रीजन भी होता है, तो अरे टाइम टू टाइम भी होता है। अगर आप आज से कुछ 100 साल पहले या 10 साल पहले किसी वर्ड को जानते होगे, किसी शब्द को जानते होगे, तो उसका अर्थ आज कुछ वर्ड्स का अर्थ आज बदल चुका होगा, उन शब्दों का मतलब आज बदल चुका होगा। तो वैसे ही चेंजेस हमें हिस्ट्री में भी देखने मिलते हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री हजारों साल पुरानी होती है, यू नो द हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो whenever you read the history of thousands of year old, how could you understand that history with the our present time meanings? Okay, अगर आप कोई मैन्यूस्क्रिप्ट, अगर आप कोई 1000 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हो और उस किताब में कुछ लिखा है, तो तुम्हें उस शब्दों का मतलब उस समय के हिसाब से ही लेना होगा। आप उन शब्दों का मतलब आज के हिसाब से नहीं ले सकते। अगर आपने आज के समय में जो उसका मतलब होता है वो अगर आपने उस समय अगर वैसे ही पढ़ा और वैसे ही समझा, तो हिस्ट्री आपकी पढ़ना गलत हो जाएगी। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप चीज़ों का वैसा ही मतलब लो जो कि उस समय में था। जैसे कि हमने पिछले इसमें मैप देखा, जो भी हमने मैप देखे, हमें वही मैप यूज़ करना है जो कि उस सेंचुरी उस समय में बने हैं। हम आज का मैप उस समय के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, उस समय की हिस्ट्री समझने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ आपके बुक में एग्जाम्पल दिए थे। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर। जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज में पाए जाते हैं। उसका कोई एक लैंग्वेज नहीं है, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। और लैंग्वेज ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। लैंग्वेज कैन नॉट बी अ सेम, लैंग्वेज चेंजिंग, इवॉल्विंग कंटिन्यूसली। तो हज़ारों साल पुराने आज भी हिस्ट्री चेंज हो जाती है। सो इस यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो मिडिवल पर्शियन है वह आज के पर्शियन से अलग है। जो मिडिवल पर्शियन ये एक लैंग्वेज है, पर्शियन इज अ वन लैंग्वेज, ओके। एंड द मिडिवल पर्शियन लैंग्वेज एट द टाइम पीरियड ऑफ मिडिवल एरा is different from the Persian language which we are knowing today. So if you want to read anything Persian in the medieval era, you have to consider the meaning of those words in that era only, not today's, because आज के पर्शियन में ग्रामेटिकल चेंजेस है, वोकेबलरी चेंज है, काफ़ी सारे चेंजेस है। तो आप आज के समय की लैंग्वेज को कंसिडर करते हुए उस समय की हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो। आपको वैसे ही मतलब लेना होगा उन शब्दों का जो कि उस समय में यूज़ होते हुए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे कि पुराने समय में हिंदुस्तान कौन से रीजन को बोलते थे, जो कि आज का अपना हिंदुस्तान इंडिया है। अगर आपको इंडिया या हिंदुस्तान बोलता है तो आपके सामने एक पूरी इमेज आ जाती है इंडिया के मैप की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल और नॉर्थ ईस्ट तक, असम उधर तक। लेकिन पुराने समय में इंडिया ऐसा नहीं था। पुराने समय में इंडिया एक पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जो ज़मीन थी उस एरिया को बोला करते थे। तो अगर आप मिडिवल हिस्ट्री या फिर उस समय की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर और वहाँ पे हिंदुस्तान नाम का अगर शब्द आता है कि ये हिंदुस्तान है, तो आपको इतना ही समझना होगा कि
हरियाणा, पंजाब और गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है वही हिंदुस्तान है। आप वहाँ पे आज का जो साउथ इंडिया, आज का जो केरला, आज का जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये नहीं ले सकते हो। तो आई गेस आपके समझ में आ रहा है कि वर्ड्स ये चेंज होते रहते। उस समय में हिंदुस्तान बस पंजाब हरियाणा उतने से एरिया को बोलते थे, दिल्ली के आजू बाजू का एरिया, लेकिन आज हिंदुस्तान एक बहुत अलग टर्म है। तो समय के साथ में चीज़ें चेंज होती है, समय के साथ में वर्ड्स और उनके मीनिंग भी चेंज होते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। और एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, फॉरेनर। आज हम फॉरेनर किसको कहते हैं? आज जो भी बाहर के देश से हमारे देश में आता है या फिर हम बाहर के देश में जाते हैं तो बाहर के देश का आदमी को फॉरेनर कहते हैं। लेकिन पुराने समय में फॉरेनर उन लोगों को कहते थे जिनसे जान पहचान नहीं होती थी, और वो लोग जो दूसरे गांव से आते थे। तो अगर आप किसी शहर में रह रहे हो और आपके शहर में किसी और शहर से कोई आदमी आ रहा है और आपकी उसकी पहचान नहीं है, तो आप उसे फॉरेनर कहोगे। फॉरेनर को आप अजनबी भी कहते हो, ठीक है, अजनबी तो कहते हो, अजनबी चलता है। लेकिन फॉरेनर लेकिन जो फॉरेनर वर्ड्स हम आज जनरली यूज़ करते हैं वो एक दूसरे देश के आदमी को यूज़ करते हैं। उस समय में दूसरे देश के आदमी को यूज़ नहीं करते थे। उस समय में दूसरे गांव से आए हुए आदमी जिसकी पहचान नहीं है उसको फॉरेनर कहते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि मैंने आपको एक्टिविटी दी थी प्री लेक्चर असाइनमेंट में, उसके बेसिस पे इस टॉपिक के बेसिस पे ही मैंने आपको एक्टिविटी दी थी। अगर आपने एक्टिविटी की होगी तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री एंड देयर सोर्सेस के बारे में, हिस्ट्री और उसके स्रोतों के बारे में ही दी गई है। तो हम टेक्स्ट पढ़ने से पहले कुछ देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने एक्टिविटी की होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि आपने हिस्ट्री कहाँ कहाँ से लिखी है, देख के आपने किन किन चीज़ों की हेल्प ली है हिस्ट्री लिखने के लिए। सो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब द थिंग्स विच वी यूज टू राइट द हिस्ट्री, द थिंग्स विच हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री, दोज आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो यहाँ पे आप सबसे पहला फोटो देखिए, कौन सा है? फोटो दिया है कॉइन्स का। कॉइन से आपको क्या पता चलता है? कॉइन से आपको सिंपल अगर बताया जाए तो कॉइन से पता चलता है कि जो भी समय रहा होगा उस समय में लोग कॉइन्स यूज़ करते थे। उस समय में लोग लेन देन के लिए किस सिक्कों का यूज़ करते थे। उससे उनका मटेरियल पता चलता है कि कौन से धातु से बनाए जाते हैं। उससे ये भी पता चलता है कि टेक्नोलॉजी क्या थी उस समय की, कि उस समय में उन्होंने इतने अच्छे कॉइन्स बनाए। कॉइन्स से हमें पता चलता है कि कौन से राज्य के हैं, ये इनका वैल्यू क्या है। सारी चीज़ें हमें कॉइन से पता चलती है। तो देखिए आपको इतनी सारी हिस्ट्री पता चलेगी। यू गॉट टू नो दिस मच ऑफ हिस्ट्री जस्ट फ्रॉम अ सिंगल कॉइन। ओके, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। देन सेकंड, इफ यू लुक आउट द सेकंड इमेज, इट इज द इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन। Inscription on stone means it is written things or the drawing or anything sculpture on a stone. Okay, so if you look at carefully to this image, you can find the history of this particular stone. Okay, what is shown here? तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। अभी हम इसकी हिस्ट्री निकालें, हम इसकी हिस्ट्री कैसे समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है? एक तरफ घोड़ा दिख रहा है, एक तरफ हाथी दिख रहा है। ओके, घोड़ा और हाथी है, और घोड़े और हाथी पे एक एक आदमी बैठा हुआ है, और आदमी का हाथ जो भी घोड़े पे बैठा हुआ है वो इस तरीके से है, यानी उसके हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ है। सॉरी, उसने उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हाथ में कुछ तलवार या कुछ यही होगा, वेपन होगा जो कि उसने पकड़ा हुआ है, और दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। हाथी इधर है, घोड़ा इधर है, दोनों के एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, और आजू बाजू में बहुत से लोग हैं जिनके भी हाथों में कुछ दिखाई दे रहा है। तो इससे आप क्या समझ सकते हो? जो भी यहाँ पे दिया है ये युद्ध बताया हुआ है, ये किसी ना किसी का युद्ध है जो कि इंस्क्रिप्शन में दिखाया दिया है। सो यू गॉट टू नो, नाउ यू गॉट द हिस्ट्री ऑफ द स्टोन, कि यहाँ पे एक युद्ध दिखाया दिया है, लोग ऐसे है, एक घोड़े पे एक हाथी पे, दोनों भी राजा हो गए या सामंत हो गए या आर्मी मैन हो गए, नीचे के लोग हैं। तो आपको इतनी चीज़ें पता चल गई है जस्ट अ सिंपल लुक ऑफ एट द इंस्क्रिप्शन। तो आप अगर इसकी डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड द सोर्सेस। इसके बाद में दिया है एक आर्किटेक्चर।
एक फ़ोटो दिया है। ये फ़ोटो एलोरा केव्स का है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और एक वंडर भी है। 7th वंडर में नहीं आती है बट इट इज़ अ वंडर। सो यहाँ पे आर्किटेक्चर दिया है। इस आर्किटेक्चर से आपको कई सारी चीज़ें पता चलती है कि उस समय उन लोगों का रहना कैसा था, उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी उनके पास, उन्होंने टेम्पल क्या बनाया, वो कौन से देवताओं को वर्शिप करते थे। सो दिस आर द लाइक मेनी थिंग्स यू गॉट टू नो फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। And the fourth one which is given here is a manuscript. Manuscript nothing but the written document. Manuscript is nothing but the written document. Manuscript जैसे कि उस समय के चलो बाद में बताऊंगा। जैसे manuscript written document है, एक नोटबुक होती थी जिसके अंदर लिखते थे, टेक्स्ट लिखते थे, तो आप सिंपल वो पढ़ के हिस्ट्री जान सकते हो। लेकिन जैसे कि हमने हमारे पिछले स्लाइड्स में पढ़ा, जब भी आप उस समय की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको वही मतलब लेना होगा उन शब्दों का जो कि उस समय हुआ करता था। आप आज के समय के मीनिंग उस समय नहीं लगा सकते हो। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। जैसे हिस्टोरियंस को अलग अलग टाइप के सोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं हिस्ट्री जानने के लिए, क्योंकि एक सिंगल सोर्स से सारी हिस्ट्री नहीं मिलती। हमने ऊपर ही देख लिया, हमें सिर्फ कॉइन से सारी हिस्ट्री नहीं मिल गई, हमें कॉइन के साथ इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, मैन्युस्क्रिप्ट, जो भी चीज़ हमें मिलती है उन सब सारी इसकी स्टडी करनी पड़ती है, और ये काम हिस्टोरियंस का होता है। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन स्लोली डिप्लेस्ड बाय द टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो जो भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड यानी मैन्युस्क्रिप्ट टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो भी मिले हैं उस समय में, वो काफ़ी बढ़ चुके थे इन मेडिवल पीरियड, क्योंकि पेपर वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम। पेपर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो गई थी। उसके बाद थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम्स चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और मेडिवल पीरियड में पेपर सस्ता भी हो गया था और काफ़ी ज़्यादा मिलने भी लगा था। इसलिए हमें उस समय की मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्री हिस्टोरिक फेज, उस टाइम में मैन्युस्क्रिप्ट होते थे नहीं। जब लोग गुफा में रहते थे, व्हेन द पीपल्स वेर स्टार्टेड लिविंग इन केव्स, दे वर ड्राइंग समथिंग ऑन द वॉल्स, you see those were the very simple type of paintings and all. So from this painting we got to know about their livings and all, how they hunt, how they do their daily things from the simple painting. And at that time paper was not available, so due to the unavailability of paper, those people were writing or sculpting the stones and other things. Okay, now moving to the next slide. Okay, देखिए अभी यहाँ पे आपको एक इमेज दी है। सो किसकी इमेज है? द इमेज फिगर नंबर 1, इट इज़ द इमेज ऑफ स्क्राइब। हु इज़ द स्क्राइब? स्क्राइब इज़ अ पर्सन हु कॉपीज द डॉक्यूमेंट, और वी कैन से द कॉपीज द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट इज सिमिलर। ओके, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करता था। व्हाट इज द नीड टू कॉपी दोज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट दैट टाइम? बिकॉज नो प्रिंटिंग प्रेस वर अवेलेबल एट दैट टाइम। प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं होती थी, इसलिए वो चीज़ें उन्हें हाथ से कॉपी करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर वो कॉपी नहीं करते हैं तो उनका जो पुरानी कॉपी है वो ख़राब हो सकती है, वो ख़राब होकर डिस्ट्रॉय होकर वो कम्प्लीटली किसी काम की नहीं होगी। इसीलिए, या फिर अगर उनको किसी और को कॉपीज़ देने होते हैं तो उनके मल्टीपल कॉपीज़ बनाने होते हैं, इसलिए उन्हें हाथों से लिखना पड़ता है। सो स्क्राइब का यही काम है कि कॉपीज़ तैयार करें, एक मैन्युस्क्रिप्ट के ओरिजिनल इसके नए कॉपीज़ तैयार करें। और तो देखिए स्क्राइब में क्या प्रॉब्लम आता है। स्क्राइब जब लिखता है, लाइक आई हैव ऑल्सो गिवन यू द एक्टिविटी, कि जब भी आप लिखते हो, जब आप आपके फ्रेंड के बुक से लिखते हो, तो आप उसमें से बहुत से वर्ड्स मिस कर देते हो, आप कुछ वर्ड्स नए इंट्रोड्यूस करते हो, आपके फ्रेंड के और आपके हैंडराइटिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जब कोई थर्ड पर्सन वो पढ़ेगा या फिर आप भी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होंगे, ओरिजिनल कॉपी में और आपके कॉपी में। ओके, अंडरस्टूड? there will be changes in the original copy and the next handwritten copy, because it is handwritten, there must be a changes. ऐसा हो नहीं सकता, ह्यूमन मिस्टेक करता है, ह्यूमन मेक्स मिस्टेक्स एवरीवेयर। तो यहाँ पे भी मिस्टेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, इसलिए चेंजेस होते हैं, और इस वजह से जो कि ओरिजिनल मीनिंग है उस चीज़ का वो बदल जाता है। अगर आप एक आधा शब्द उसमें भूल जाते हो तो उस लाइन का मीनिंग चेंज हो जाएगा, वहाँ पे डाउट आ जाएगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है तो पढ़ नहीं पाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स
changes introduced into the manuscript by the scribe. Scribe is a process. Here one example is given. Look at this another two images in the figure number 2. So both are the Persian language, okay, reading of Persian. So if you see the first image from the left side, this image is we see the pretty much clear and clearly written, okay, बहुत अच्छे से लिखी गई ऐसी दिख रही है, तो वो राइटिंग हमें ईजी है पढ़ने के लिए। लेकिन आप दूसरी इमेज देखोगे जो कि काफ़ी अच्छे से नहीं लिखी हुई दिख रही है, तो कर्शु पर्शियन है, वो कर्सु में लिखी है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आपको हिस्ट्री समझने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दिस विल मेक योर हिस्ट्री रीडिंग डिफ़िकल्ट एंड नोइंग डिफ़िकल्ट, एंड इट विल मेक अ लॉट्स ऑफ चेंजेस in your original history. Now moving to the next, here's the disadvantages in scribing is given. So I will reading, as the scribe copied manuscript, they also introduce small changes, a word here or sentence there. जब भी स्क्राइब कॉपी करता है तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं उसके हाथों से, इंटेंशनली नहीं होते, इंटेंशनली भी होते। बहुत से स्क्राइब या बहुत से राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को चेंज कर दिया है। अगर आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूँ, अगर आप रामायण अगर आप देखते हो, रामायण अगर आप पढ़ते हो, तो आपको हर एक बुक में रामायण थोड़ी अलग अलग मिलेगी, आपको चेंजेस मिलेंगे। महाभारत में चेंजेस मिलेंगे, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग लोगों ने लिखी है, एक सिंगल पर्सन ने लिखी है, और बहुत बार कॉपी हो चुकी है ये, बहुत बार लोगों ने हाथ से उसको नए डॉक्यूमेंट्स में लिखी है। इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। बेसिक जो कंसेप्ट है उन चीज़ों का सेम है, बेसिक सेम है, लेकिन जो स्मॉल बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो ज़्यादा मैटर नहीं करते, वो उसमें चेंज हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रीव ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो बहुत बार सालों तक इसको लिखते लिखते, स्क्रैबिंग करते हुए, इसको लिखते चेंज होते होते, हर बार जब हम लिखते हैं तो ये चेंज होती रहती है। तो इसमें ओरिजिनल इसमें और आज जो प्रेजेंट में है उसमें काफ़ी सारा चेंजेस आ जाता है। As a result, historians have to read manuscript version of same text to guess what the author had written originally. So historians को काफ़ी सारे एक ही सेम टेक्स्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि अगर एक डॉक्यूमेंट के 4 कॉपी से 4 अलग अलग एजेस की, 4 अलग अलग टाइम की, तो चारों भी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी हिस्टोरियंस को, और वहाँ से समझना होगा कि इसमें से क्या करेक्ट है। दैट इज़ द वर्क ऑफ हिस्टोरियन। सो आप किसी एक सोर्स से कभी नहीं बता सकते हो कि हिस्ट्री इज़ करेक्ट। History is handwritten. History cannot be 100% true always. Okay, you have to verify. Still, there's a doubt कि वो हिस्ट्री गलत भी हो सकती है। तो हिस्ट्री cannot be true. Like physics and science, you know the science can be proved, but history cannot be proved. So history cannot be true always. You have to remember these things always. Okay. जैसे कि आप एग्जांपल दिया है जियाउद्दीन बरानी, इन्होंने 2 कॉपीज लिखी थी जिसमें से हमें एक कॉपी का पता ही नहीं था। तो रिसेंटली 1971 में इनकी हमें एक ओरिजिनल कॉपी मिली, नॉट ओरिजिनल, इनकी एक कॉपी मिली जो कि उससे पुरानी थी। तो जब हमने दोनों कॉपी पढ़ी तो हमें पता चला कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है तो एक ही इंसान की, लिखी भी एक ही इंसान ने, बट हमें डिफरेंस पता चला। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। यहाँ पे आपको रेड में एक सेंटेंस दिया गया है, आर्काइव। आर्काइव क्या होता है? आर्काइव इज़ अ प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड। ये एक जगह होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट रखा जाता है। जस्ट लाइक योर लाइब्रेरी को बोल देंगे, आपकी लाइब्रेरी एक आर्काइव है, बट लाइब्रेरी हैज़ सम अदर पर्पस। आर्काइव में लोग पढ़ने नहीं आते, ओके, आर्काइव्स में लोग पढ़ने नहीं आते, वो रखी होती है। जैसे कि आप देखते हो कोई भी ऑफिस में जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे, दैट इज द आर्काइव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें मैं डायरेक्ट आपको सेंटेंस पढ़ के समझाता हूँ। इन द मिडल ऑफ 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim and British. 19th century में ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करना चाहा। आई मीन इंडिया की हिस्ट्री को जैसे हमने अभी डिवाइड किया है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, वैसे उन्होंने डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने रिलीजन के ऊपर जो भी रूलर्स आए हैं, पहले हिंदू रूलर्स थे, फिर मुस्लिम रूलर्स एंड देन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड करना चाहा। सो इसमें राइटर लिखते हैं कि दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि सिर्फ जो रिलीजन ऑफ रूलर्स है, हिंदू रूलर, मुस्लिम रूलर, हिंदू मुस्लिम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया को डिवाइड करने के लिए, उनको ऐसा लगता था, विच इज़
अ वेरी रॉन्ग थिंग, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। उन्होंने इंडिया के अंदर जो कि बाकी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, ये सारे चेंजेस आए, उन्होंने उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, जो कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है, आप पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया और उन्होंने उनका ध्यान सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और इन चीज़ों पर लगा दिया। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू क्लासीफाई द टाइम पीरियड, ओके। एंड इन थर्ड पॉइंट में दिया है, मोस्ट हिस्टोरियंस लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। बहुत से जो हिस्टोरियंस है उन्होंने अलग अलग चीज़ों से डिवाइड किया, क्लासीफाई किया, कि कोई हिस्टोरियंस ने इकोनॉमिक फैक्टर्स पे क्लासीफाई किया, कुछ हिस्टोरियंस ने सोशल फैक्टर, सोशल मीन्स लोगों का रहनीमान, लोग कैसे रहते थे उसके बेसिस पे, इकोनॉमिक यानी लोगों की प्रगति कैसी हुई उन चीज़ों पे, उस तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द मेडिवल। सो दिस ईयर 7th स्टैंडर्ड में जो आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, ये एक मेडिवल हिस्ट्री बोली जाएगी, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद में दिया है, यू विल फाइंड more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial formations, sometimes the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as a major religion, and the arrival of European trading companies. So medieval history में आपको ये सब आएगा, ठीक है, जो कि ये जैसे आपको एक ब्रीफली आउटलाइन दिए, ये सारी चीज़ आपके बुक में आपको आगे के चैप्टर में दिखेगी। तो ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर, सेकंड पॉइंट यहाँ का, ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर the societies of the subcontinent were transformed often, and economies in the several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading company. So ये जो 1000 साल थे, 700 to 750, इनका जो 1000 साल का 1000 ईयर का समय रहा है, इसके अंदर इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ, काफ़ी नए रूलर्स आए, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, कल्चरल चेंजेस आए बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से ये हुआ, जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। सिमिलरली तो यूरोपियन के जो ट्रेडिंग कंपनीज थे, ट्रेडिंग कंपनीज वहाँ के व्यापार करने वाली कंपनीज थी यूरोप की जैसे आपको पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है जो कि ब्रिटेन की थी, तो वो कंपनीज का इंटरेस्ट इंडिया में आने लगा और तभी वो लोग इंडिया में आए, और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की इंडिया में आई और हमारे भारत को बंदी बना लिया। ओके, आगे हम देखते हैं, लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेन एवर यू कैन, एंड लुक द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट हैज़ चेंज और रिमेन द सेम। सो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको आपके आजू साइड में जो भी हो रहा है, आप उसको उस सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें सेम रह रही है। जैसे अभी कोरोना आ गया है, कोरोना भी अब एक हिस्ट्री हो चुका है, क्योंकि व्हाट एवर इज़ द पास्ट इज़ अ हिस्ट्री। सो कोरोना भी एक हिस्ट्री है, और इसमें कितने कुछ अच्छे चेंजेस आए, कुछ बुरे चेंजेस आए। तो जो भी अच्छे चेंजेस आए उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आपको तो बुक में नहीं आएगा कोरोना, आपके हिस्ट्री के बुक में नहीं आएगा, बट आफ्टर अ ईयर्स इट कैन बी कम इन टू योर हिस्ट्री बुक्स, बिकॉज दिस इज द हिस्ट्री। सो यहाँ से आपको जो भी आपके आज साइड में हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, कौन सी सिमिलर रह रही है, चेंज किस तरीके से हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, सो दैट you will have the understanding of your environment. Okay, so now it's time for our quiz time. So here our first topic has end, and in the next lecture we will see the another topic. So as I told you in the introductory video of our learning series that I will be giving you pre-lecture assignment and the post-lecture assignment. So here this is our post-lecture assignment, and it is very important for you all to solve this, because when you solving this, you will get automatically revise all those topics whatever you have learned today. Now solve this exercise, and if you have not watched the introductory video yet, please watch it. You can find the introductory video link below in the description, or you can find it on our channel, and share these lectures with your friends so that they will also get benefited. Now it's a goodbye from me. Thank you all.